Part 2 English for SSC CGL 2023 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चंस फॉर SSC CGL CHSL MTS एग्जाम्स के लिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड अगर आप पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे कन्वीनियंस का स्पेलिंग है, तो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं जिसमें से 3 गलत है, 1 सही है। तो कन्वेंस का स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन सी CONNIVANCE is the right answer. Question number 12. Rearrange the following sentences. Rewarding on encroacher on public. तो यहाँ पे PQR reward to a pickpocket site is like giving a land with free alternative. तो यहाँ पे PQR दिया हुआ है, तो हमें ये देखना है जो रिवार्डिंग ऑन एनक्रोचर ऑन पब्लिक, इसके बाद क्या आएगा, मतलब जो हमें सेंटेंस को मीनिंगफुल तरीके से इसको अरेंज करना है। तो रिवार्डिंग एन एनक्रोचर ऑन पब्लिक, सबसे पहले आ जाएगा आर लैंड विथ फ्री अल्टरनेटिव एंड देन आ जाएगा क्यू अल्टरनेटिव साइट इज लाइक गिविंग अ रिवार्ड टू अ पॉकेट। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा RQP, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सेम क्वेश्चन है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज ड्यू टू पुअर ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, ऑर्गेनिक मैटर के बाद आ जाएगा हमारा इन करप्शन ऑर्गेनिक कार्बन, एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा P इन सॉइल इज बिलो द रिक्वायर्ड, एंड उसके बाद R यानी कि लेवल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा हमारा ड्यू टू पुअर ऑर्गेनिक मैटर इन करप्शन ऑर्गेनिक कार्बन इन सॉइल इज बिलो द रिक्वायर्ड लेवल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी QPR इज द करेक्ट आंसर। Question number 14th. In the question given below, a part of sentence is underlined. Below are given alternative to the underlined part at A, B, and C, which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no improvement is needed, your answer is D, which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no improvement is needed, your answer is D. The ship ran over when it crashed into an iceberg. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रैन ओवर अंडरलाइंड है, इसकी जगह आ जाएगा हमारा वेंट डाउन, यानी कि द शिप वेंट डाउन व्हेन इट क्रैश्ड इनटू एन आइसबर्ग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15th. A sentence has been given in direct and indirect narration. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in direct indirect narration. Chinmaya said to Shahil, "Did you want to talk with me?" तो इसका जो हमें डायरेक्ट नरेशन जो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए Chinmaya asked Sahil if he had wanted to talk with him. Option A is the right answer. Question number 16th. A sentence has been given in active passive voice. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive active voice. All his friends laughed at him. तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, he was laughed at by all his friends. Option D is the correct answer. Question number 17th. Which of the phrase A, B, C and D given below each sentence should replace the phrase printed in bold type to make the sentence grammatically correct? If the sentence is correct, mark no correction required as the answer. If the sentence is correct, mark D no correction required as the answer. Many employees are hesitate to volunteer for assignment in a foreign country because of language and culture issues. तो गाइज यहाँ पे hesitate to volunteer ये बोल्ड है, तो यहाँ हमें देखना है जो इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं। तो हेजिटेंट टू वॉलंटियर यानी ऑप्शन बी हम इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 18th. Which of the phrase A, B, C and D given below each sentence should replace the phrase printed in bold type to make the sentence grammatically correct? If the sentence is correct, mark no correction required as the answer. V. If the sentence is correct, mark D no correction required as the answer. Salaries in state-owned enterprises today have to be in line on prevailing market rates in order to reduce turnover. तो guys यहाँ पे to be in line on यहाँ पे bold है, तो बोल्ड टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है जो टू बी इन लाइन ऑन की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी टू बी इन लाइन विथ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19th. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन वर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसका जो मीनिंग होगा वो होगा वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन वर्ड पेंट्री। तो इसका मीनिंग होगा अ प्लेस फॉर प्रोविजंस एटसेट्रा इन द हाउस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे एंड आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा पार्ट 3। उसमें 5 नंबर का हमारा पैसेज पूछा जाता है, तो मैं आपको पार्ट 3 में पैसेज के बारे में बताऊंगी।